Hello students, in today's assignment we will discuss first chapter of history, which is the First War of Independence 1857. The First War of Independence is also known as the Sepoy Mutiny. First of all, we will discuss causes of the War of Independence, starting from political causes. The first main important political cause is policy of expansion. The British policy of territorial expansion and gradual annexation of the native Indian states was one of the major grievances of the Indian rulers. Ever since the Battle of Plassey, the East India Company's territorial power increased rapidly. The British tried to expand their political powers in India by four ways. इसका मतलब कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का लालच था वो इंक्रीज हो गया था. दे वांटेड टू कंट्रोल more and more territories. Britishers wanted to expand their rule in four ways: by outright wars, by the system of subsidiary alliance, by adopting the doctrine of lapse, and on the pretext of leased misrule. Leased misrule का मतलब कि वो इस बात का हवाला देते थे कि कई रूलर्स अपने राज्य को अच्छे ढंग से नहीं चला पा रहे, तो वो इसके हवाले से वो उस राज्य को अपने अंडर ले लेते थे. देन वी विल डिस्कस दीज फोर पॉइंट्स वेरी क्लियरली. फर्स्ट पॉइंट इज बाय आउटराइट वॉर्स. टू एक्सपैंड देयर टेरिटोरियल पावर इन इंडिया and to safeguard their economic and political interest, the British waged many wars. First, we have to discuss that East India Company first came to do trade in India, but gradually they started expanding their rule, beginning from east, that is Bengal. They fought many wars. First main war is the Battle of Buxar in 1764. This war established the British as masters of Bengal, Bihar and Odisha. इस वॉर के बाद ब्रिटिशर्स के अंडर बंगाल आ गया था, बिहार आ गया था और उड़ीसा भी आ गया था. एज ए रिजल्ट ऑफ देयर सक्सेस इन एंग्लो मैसूर वॉर, the East India Company annexed most of the territories of the Mysore state. उन्होंने 1767 to 1799 जब उनकी एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी उसके टाइम पे भी उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज जो मैसूर स्टेट के अंडर आती थी उनको अपने कब्जे में ले लिया था. आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1818, the Peshwa's entire dominions and all Maratha territories north and south of the Narmada River were acquired by the Britishers. जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी उसके अंतर्गत जो उन्होंने पेशवा के जो अंटायर डोमिनियंस थे, मतलब जो अंटायर उनके अंडर जो किंगडम्स आते थे वो सारे उन्होंने अपने अंडर ले लिए थे, एक्वायर कर लिए थे ब्रिटिशर्स ने. The Punjab was annexed in 1849 after the Sikhs were defeated in the Second Anglo-Sikh War. जो पंजाब था उसको भी अनेक्स कर लिया था 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में. फ्रॉम 1823 to 1856, the British further extended their empire by conquering Sindh, territories of Assam, Arakan and Tensrim and Pegu in Myanmar. 1823 to 1856 के टाइम पे भी उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को अपने अंडर ले लिया था. So we can see that all part of India were slowly annexed by Britishers by defeating very powerful Indian rulers of that time, such as Mysore ruler, Marathas ruler, Sikhs ruler, etc. So now we will discuss by subsidiary alliance. Some Indian states were brought under the British control without actually annexing them. इसका मतलब
कि कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, जबकि ब्रिटिशर्स ने उनको अनेक्स नहीं किया था, अपने कब्जे में नहीं लिया था। दिस वॉज डन बाय फॉलोइंग द सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ये कैसे हुआ? सब्सिडरी अलायंस की वजह से, जो किसने इंट्रोड्यूस की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली और सब्सिडरी अलायंस, इसको याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। Subsidiary alliance was an agreement between the British East India Company and Indian princely states by virtue of which these states lost their sovereignty to the British। ये एक एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत जो इंडियाज प्रिंसली स्टेट्स थे, नवाबों के जो स्टेट्स थे, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस पूरी तरह से किसके हाथ में गंवा दी थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में गंवा दी थी। Under this system, the Indian rulers who agreed to the subsidiary alliance के agreement में क्या क्या provisions थे? सबसे पहले क्या था? Accepted the British as the supreme power। जो Britishers थे उनको as a supreme power उन्होंने accept कर लिया Indian princely states ने। Then surrendered their foreign relations to East India Company and agreed that they would not enter into any alliance with any other power and would not wage वॉर्स। इसका क्या मतलब कि जो उनके फॉरेन रिलेशंस थे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के, वो सारे किसके अंडर में आ गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर के। क्यों? उन्होंने उन सारे रूल्स अपने सरेंडर करते थे किसके सामने? ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। अब जो जितने भी फॉरेन रिलेशंस हैं उस पर कौन वर्क करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। Then the third point is accepted a British resident at their headquarters and agreed not to employ any European in their service without consulting the company। इसका मतलब क्या है कि in every princely state there would be a British resident who would be appointed by the East India Company। In that particular state they would not employ any foreigners, any European without getting NOC from East India Company, note of objection, it means NOC। Then the fourth point is agreed to maintain British troops at their own cost। मतलब ब्रिटिशर्स ने उन प्रिंसली स्टेट्स में अपनी सेनाओं को भी लगा दिया था। Then virtually lost their independence, कि वो टोटली अपनी इंडिपेंडेंस खो चुके थे। किन हाथों में? ब्रिटिशर्स के हाथों में। By 1856, practically all the Indian states had either been annexed or had entered into alliance with the company। The British had become the supreme power and the Indian state princes were reduced to puppets। इसका क्या मतलब है कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, इन अलायंस के जरिए वो एक पपेट बन के रह गए थे। पपेट मतलब उनको कंट्रोल कर रहे थे। कौन कंट्रोल कर रहे थे? ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। रूल वो कर रहे थे नाम पर किनका था? प्रिंसली स्टेट्स का। देन द थर्ड पॉइंट इज बाय यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अनेक्स्ड मैनी स्टेट टू द कंपनी यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब कई सारी कंपनीज को अपने अंडर में लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, किस पॉलिसी को यूज करके? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर, हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज इट वुड कम अंडर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। कि अगर किसी रूलर, इंडियन किंगडम का कोई रूलर है तो वो मर जाता है, तो जो उसका किंगडम है वो किसके अंडर में आ जाएगा? कंपनीज टेरिटरी, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर में वो किंगडम आ जाएगा। व्हेन द रूलर ऑफ झांसी डाइड इन 1853, लीविंग नो नेचुरल हायर, द विडोड रानी वॉज पेंशनड एंड देयर अडॉप्टेड सन आनंद राव वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द लॉफुल सक्सेसर टू द थ्रोन। इसका एग्जाम्पल एक है कि जब झांसी का जो किंगडम था 1853 में, जब उसका रूलर मर गया था, तो उसके पीछे उसका कोई संतान नहीं थी, उसका कोई बेटा नहीं था। तो जो उसकी विडोड रानी थी, विधवा रानी लक्ष्मीबाई, और उनका अडॉप्टेड सन आनंद राव को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया उनका
एज अ लॉफुल सक्सेसर, मतलब नेचुरल सक्सेसर एज ए उनको नहीं माना उस थ्रोन का, क्योंकि वो एक अडॉप्टेड सन थे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पेंशन लगा दी, पर आनंद राव को उन्होंने एक नेचुरल सक्सेसर नहीं माना। द अदर प्रोमिनेंट स्टेट्स विच वर अनेक्स्ड बाय अप्लाइंग दीज डॉक्ट्राइन वर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर एंड नागपुर। और जो स्टेट्स अनेक्स की गई थी इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के ज़रिए वो कौन सी हैं? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर एंड नागपुर। यू हैव टू लर्न दीज स्टेट्स, द नेम ऑफ दीज प्लेसेस यू हैव टू लर्न। The principles of labs was also applied to take away the titles and pension of the rulers of some states. इस labs के अंदर क्या, इस प्रिंसिपल के अंदर क्या आता है कि जो कई सारे रूलर्स हैं उनके जो टाइटल्स, जैसे पिछले ज़माने में टाइटल्स लिए जाते थे शहनशाह हिंद वगैरह ऐसे टाइटल्स, तो वो टाइटल्स उन्होंने उनसे छीन लिए और उनको पेंशन्स, कई रूलर्स की तो पेंशन भी बंद कर दी। रेगुलर टाइटल्स ऑफ द नवाब्स ऑफ कार्नाटिक and Tanjore were taken away. This caused discontent among the rulers as well as among the people in general. इसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए। Then D पॉइंट है on the pretext of alleged misrule, जैसे हमने पहले पढ़ा था alleged misrule. In 1856 Lord Dalhousie annexed Awadh to the company's dominions on the pretext of alleged misrule. 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? अवध को अपने कब्जे में ले लिया इस चीज़ का हवाला देके कि आप अच्छी तरह से रूल नहीं कर पा रहे। alleged misrule का मतलब ये होता है। He declared that Awadh was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. उनका ये मानना, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया अपनी तरफ से कि जो ये अवध है इसको एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो लॉर्ड डलहौजी जस्टिफाइड द एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ द गुड ऑफ द गवर्नड। उन्होंने ये हवाला दिया लॉर्ड डलहौजी ने कि ये जो हम कर रहे हैं ये लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, पर इसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। द पीपल ऑफ अवध हैड टू फेस मोर हार्डशिप्स, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। They had to pay higher land revenue and additional taxes on food, houses and ferries. लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्स देने पड़े, किस पे? फूड पे, हाउसेस पे और फेरीज पे। Then the dissolution of the Nawab of Awadh army and administration through thousands of noble officials and soldiers out of jobs. जो नवाब ऑफ अवध थे उनका जब रूल ख़त्म हो गया, तो जब उनका रूल ख़त्म हो गया तो इस वजह से कई ऐसे ऑफिशियल्स से जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करते थे उन सब की नौकरी खतरे में पड़ गई और वो चली गई। द ब्रिटिश कॉन्फिस्केटेड द ईस्टेट्स ऑफ द तालुकदार और ज़मींदार। जो अमीर ज़मींदार थे उनका सारा कामकाज ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी वजह से सारे ज़मींदार और तालुकदार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। द कंपनी sepoys of whom 75,000 were from अवध, जो ब्रिटिशर्स के अंडर सोल्जर्स काम करते थे 75,000 सोल्जर्स थे जो अवध से थे, वर द मोस्ट अफेक्टेड, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए। इस कारण दीज सोल्जर्स हैड हेल्प द ब्रिटिश टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने, इन सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी सारे इंडिया को अपने, मतलब आधे से ज़्यादा इंडिया को अपने कब्जे में करने के लिए। बट दे रिजेंटेड द फैक्ट दैट देयर होमलैंड्स हैड कम अंडर फॉरेन रूल। पर वो इस बात से हट हुए कि जो उनका होमलैंड है जहाँ वो रहते हैं वो फॉरेन रूल के अंडर आ गया। द एनेक्सेशन ऑफ अवध हैड ऑल्सो अफेक्टेड द सोल्जर फाइनेंशियल पोजीशन। इस वजह से जो सोल्जर्स थे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी सफ़र हुई। That's why अवध played a major role in the uprising of 1857. इस वजह से जो अवध है वो एक मेजर रोल अदा करता है किसमें? 1857 के रिवोल्ट को फ्यूल करने में। तो अगर आपको अवध का रोल पूछा जाए तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो। नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ पोलिटिकल कॉज विच इज डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह. Bahadur Shah Zafar was the last Mughal ruler, was under the protection of the company and received a pension from the British. The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company.
जो बहादुर शाह जफर था वो लास्ट मुगल रूलर था और वो बिल्कुल प्रोटेक्शन के अंडर था कंपनी के, और उसको पेंशन लगी हुई थी। पर जो मुगल किंग था उसका जो कॉइन्स पर नेम लिखा जाता था, छापा जाता था, मिलिट्री मतलब छापा जाता था, वो उन्होंने रिमूव कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इन 1849 लॉर्ड डलहौजी announced that successors of Bahadur Shah Zafar would not be permitted to use the Red Fort as their palace. They were required to shift to a palace near the Qutub Minar. 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने अनाउंस किया कि जो सक्सेसर्स मतलब जो उसके वारिस हैं आगे बहादुर शाह जफर के, उनको रेड फोर्ट यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनको ये कहा गया कि आप अपना प्लेस है जो वो कुतुब मीनार के नज़दीक शिफ्ट कर लीजिए। इन 1856 लॉर्ड कैनिंग अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह हिज सक्सेसर्स वुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ द इंपीरियल टाइटल्स विद देयर नेम्स एंड वुड बी नोन एज मेरी प्रिंसेस। The decisions of the British hurt the feelings of Muslims. Consequently, Zeenat Mahal, the wife of Bahadur Shah, began plotting against them. 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ये अनाउंस किया अब बहादुर शाह की डेथ के बाद कि जो उनके सक्सेसर्स हैं वो इंपीरियल टाइटल्स, जो टाइटल्स पहले मुग़ल रूलर्स रखते थे वो अब वो यूज़ नहीं कर सकते। टाइटल जैसे शहनशाह हिंद जो अकबर वगैरह यूज़ करते थे, तो वो अब वो टाइटल्स को यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ राजकुमार के नाम पे जाने जाएंगे। और इस डिसीजन की वजह से जो मुस्लिम्स थे उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुई और जीनत महल ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया। देन द थर्ड पॉइंट इज़ ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। नाना साहब को जो ट्रीटमेंट दिया गया। नाना साहेब वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड द लास्ट पेशवा। नाना साहेब अडॉप्टेड सन थे किनके? बाजीराव सेकेंड के, जो लास्ट पेशवा हैं। द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड टू ग्रांट नाना साहेब द पेंशन दे वर पेइंग टू बाजीराव सेकेंड बिकॉज नाना साहेब वॉज द अडॉप्टेड सन। दैट्स वाई जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो उनको पेंशन नहीं देंगे। नाना साहिब वॉज फोर्स्ड टू लिव एट कानपुर। इस वजह से नाना साहिब को मजबूरी में कानपुर शिफ्ट होना पड़ा। दिस वॉज वाइडली रिसेंटेड इन द मराठा रीजन। नाना साहिब हैड इनहेरिटेड वेल्थ फ्रॉम द फॉर्मर पेशवा विच ही यूटिलाइज्ड इन सेंडिंग एमिसरीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस। इसके बाद नाना साहिब ने जो अपने उनके पास जो मनी इकट्ठी थी लास्ट पेशवा से, उन्होंने उसके ज़रिए एक विद्रोह करने के लिए अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी। मतलब एक तरह से आर्मी खड़ी करनी शुरू कर दी। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो नाना साहिब ट्रेवल्ड बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ टू गैदर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। तो नाना साहिब अलग अलग जगह पे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक घूमे सपोर्ट लेने के लिए, जो वो मूवमेंट चलाने वाले थे किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो द लास्ट वन इज पॉलिटिकल कॉजेज का लास्ट पॉइंट है एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। एब्सेंटी सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? एब्सेंटी सोवरेनिटी मीन्स दैट इंडिया वॉज बीइंग रूल्ड by the British government from England at a distance of थाउजेंड ऑफ माइल्स। इसका मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंग्लैंड से हमारे इंडिया पे रूल करेंगे। दिस वॉज resented by the Indians. The earlier rulers like the Mughals who had conquered India had in course of time settled in India. The revenues they collected from the Indians were spent in India only. But in the case of Britain, the Indians felt that they were being ruled from England and India's wealth was being drained to England and not utilized for their welfare. इस तरह से क्या होता था कि जो इंडिया के जो पैसे थे, इंडिया के जो वेल्थ थी वो इंग्लैंड में भेजी जा रही थी और वो वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ की जा रही थी, जबकि वो कहाँ पे यूज़ होनी चाहिए? इंडिया में यूज़ होनी चाहिए थी। तो इस वजह से इंडियंस बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट थे और इसने भी एक तरह से बहुत फ्यूल किया रिवॉल्ट को 1857 की। नाउ we will discuss socio-religious causes.
Some points are interference with social customs. Some of the social reforms introduced by the British in India were aimed at improving the conditions of the people. However, while introducing such reforms, the feeling of the people were not taken into consideration. It means कि उस टाइम पे बहुत सारी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि जो लोग हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, पर जो इन रिफॉर्म्स को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो लोगों को फीलिंग को ज़्यादा मतलब उनको ऊपर नहीं रखा गया लोगों की फीलिंग को. द रिजल्ट वॉज दैट द रिफॉर्म्स लाइक द एबोलिशन ऑफ सती 1829, the introduction of the Widow Remarriage Act 1856 and the opening of Western education to girls were not welcomed by the masses. Opening of Western education was in 1826. You have to learn those years also. तो इसका मतलब कि जो ये रिफॉर्म्स थी जैसे एबोल्यूशन ऑफ सती, सती क्या था कि a girl would actually sit on the funeral fire of husband. It was a good thing, but many people were unhappy because it was seen as interference in their customs. All right, तो इन तीनों चीज़ों को लोगों ने वेलकम नहीं किया. उनको लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये उनके रीति रिवाजों में, कस्टम्स में इंटरफेयर कर रहे हैं. द सेकेंड पॉइंट इज एप्रीहेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस. तो पीपल वर सस्पिशियस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इनोवेशंस लाइक रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स. There were rumors that telegraph poles were erected to hang those who were against the British rule. तो उस टाइम पे भी बहुत सारे रूमर्स, अफवाहें फैलाई गई किसके लिए, मॉडर्न इनोवेशंस जो ब्रिटिशर्स ने की थी जैसे रेलवेज हो गए, टेलीग्राफ्स हो गए. सबसे पहले रूमर ये थी कि जो टेलीग्राफ पोल्स हैं वो इसीलिए लगाए गए हैं ताकि जो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं उनको फांसी पर चढ़ाया जा सके, उनको हैंग किया जा सके. Similarly, Orthodox Indians, Orthodox means conservative Indians, noted that in the railway compartment the higher caste and the lower castes were made to sit side by side. तो उस टाइम पे रेलवे पे ये रूल किया गया कि जो लोअर कास्ट है और जो हायर कास्ट है वो इकट्ठे एक ही कंपार्टमेंट में बैठेगी. पर दे बिलीव दैट ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस सच प्रैक्टिस टू डिफाई द कास्ट एंड रिलीजन. तो उस टाइम पे लोगों का ये मानना था कि ये जो रूल्स लागू किए जा रहे हैं ये एक तरह से उनके कास्ट को और उनके रिलीजन के ऊपर हमला करने के लिए किए जा रहे हैं. थर्ड पॉइंट इज पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. The British officers were rude and arrogant towards the Indians. They believed that they were superior to Indians and followed a policy of contempt towards the Indian. जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस के लिए र्यूड थे, एरोगेंट थे उनकी तरफ. क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि वो उनके नीचे काम करने के लिए बने हैं. दे डब्ड द मुस्लिम एज क्रूड एंड अनफेथफुल. सम यूरोपियन ऑफिसर्स इल ट्रीटेड एंड इंसल्टेड इंडियंस. जो कई सारे यूरोपियन ऐसे थे, ऑफिसर्स ऐसे थे जो इंडियंस को इसके साथ ठीक बर्ताव नहीं करते थे और इनकी इंसल्ट करते थे. सच एक्ट्स ऑफ अनजस्ट इंडिस्क्रिमिनेशन एलिएटेड द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन मासेस. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियन मासेस थे उनके मन में ब्रिटिशर्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया. फोर्थ पॉइंट इज करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन. The police and petty officials were corrupt. The rich got away with crime, but the common man was looted, oppressed and tortured. मतलब जो पुलिस थी उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा करप्ट थी और जो रिच, जो अमीर बंदे थे वो बच के निकल जाते थे, बट जो मिडल मैन थे, कॉमन मैन थे, पुअर लोग थे, वो उनको बहुत ज़्यादा लूटा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था. फिफ्थ पॉइंट इज ऑपरेशन ऑफ द पुअर. The complex judicial system enabled the rich to oppress the poor. जुडिशल सिस्टम था उस टाइम पे, उसने ये छूट दी हुई थी रिच को, अमीर लोगों को, कि वो पुअर लोगों को तंग कर सकते हैं. फ्लॉगिंग, टॉर्चर एंड इम्प्रिजनमेंट. मारपीट, फ्लॉगिंग मीन्स मारपीट. टॉर्चर, इम्प्रिजनमेंट ऑफ कल्टिवेटर्स फॉर देयर इनेबिलिटी टू पे एरियर्स. जो वो अपना बकाया नहीं दे पाते, लैंड टैक्स नहीं दे पाते, इंटरेस्ट
जो लगता है डेप्थ पे वो नहीं दे पाते। ये सारी चीज़ों की वजह से वो उनके साथ मारपीट करते थे, टॉर्चर करते थे। तो ये सारा कुछ कॉमन था उस टाइम पे। दस द ग्रोइंग पॉवर्टी मेड द पुअर डेस्परेट एंड लेट देम टू ज्वाइन अ जनरल अपराइजिंग इन द होप ऑफ इम्प्रूविंग देयर लोड। तो इस वजह से जो पुअर लोग थे उन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया ताकि कुछ उनके इस टाइम पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। देन fears regarding Western education. The Western system of education was introduced in a number of schools in 1829. The Bengal government established an English classes in Calcutta Madrasa, which was a Muslim institution. Later, English classes were introduced in Banaras Sanskrit College. The shifting of emphasis from Oriental learning to Western education was not received well by the people, especially the Pandits and the Maulvis. They saw it an attempt to discourage traditional Islamic and Hindu studies. People started suspecting that the aim of Western education was not to promote literature and science, but to encourage their children to become Christians. तो उस टाइम पे जब वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया तो जो पंडित थे उस टाइम पे और मुस्लिम्स के मौलवीज थे, मौलवीज वगैरह, पंडित वगैरह, वो इस बात से राज़ी नहीं थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए था। तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है इसका मेन मकसद लिटरेचर को प्रमोट करना है या साइंस को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि ये है उनका मेन मकसद कि जो उनके बच्चे हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से जुड़ जाएं। देन द लास्ट मेन पॉइंट इज Law of Property. The Religious Disabilities Act of 1850 changed the Hindu law of property. It enabled a convert from Hinduism to other religions to inherit the property of his father. The Hindus regarded this as an incentive to give up one's religious faith. तो इसका क्या मतलब है कि उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर किसी हिंदू लड़के ने अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके या फिर किसी दबाव में आके क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपना लिया तो उसको उसकी जायदाद से बेदखल कर दिया जाता था। उसके डैड उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर देते थे। पर इस लॉ के अंडर, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 1850 के अंदर क्या किया गया कि जो अगर हिंदू कोई भी अपना रिलीजन चेंज करता है, क्रिश्चियन बनता है, तब भी वो अपने पिता से अपनी जो जायदाद है उसकी मांग कर सकता है। तो इसको एक तरह से ऐसा देखा जा रहा था कि जो लोग समझ रहे थे कि ये एक तरह से ब्रिटिशर्स की साजिश है कि वो सभी को अपनी तरफ कर लें, मतलब सभी को क्रिश्चियन कम्युनिटी में शामिल कर लें। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपने। Thank you students for today. Now in next lecture we will discuss economic causes, military causes and immediate causes. Thank you.